دل ہے بے قرار آقا، دل ہے بے قرار، دل ہے بے قرار آقا، دل ہے بے قرار۔ بیس بالکل زیرو کر دیجئے۔ دیکھنے کو طیبہ کی بہار، دل ہے بے قرار آقا، دل ہے بے قرار۔ دیکھنے کو طیبہ کی بہار، دل ہے بے قرار آقا، دل ہے بے قرار۔ اور سر نہیں کہ چل سکوں میں، پر نہیں کہ اڑ سکوں، زور ہے نہ تاب ہے کہ اپنے در سے ٹل سکوں، زر نہیں کہ چل سکوں میں، پر نہیں کہ اڑ سکوں، زور ہے نہ تاب ہے کہ اپنے در سے ٹل سکوں۔ آپ گر کرم کریں تو در پہ میں مچل سکوں، در پہ میں مچل سکوں، اپنی بے کسی پہ ہوں حضور عشق بار، دل ہے بے قرار آقا، دل ہے بے قرار۔ دیکھنے کو طیبہ کی بہار، دل ہے بے قرار آقا، دل ہے بے قرار۔ اور آپ نے بلایا جنہیں وہ خوش نصیب ہیں، اور وہ خدا کے پیارے ہیں جو آپ سے قریب ہیں۔ آپ نے بلایا جنہیں وہ خوش نصیب ہیں، وہ خدا کے پیارے ہیں جو آپ سے قریب ہیں۔ ایک نظر ادھر بھی ہو کہ ہم بہت غریب ہیں، ہم بہت غریب ہیں، کب گھڑی وہ آئے گی ہے جس کا انتظار، دل ہے بے قرار آقا، دل ہے بے قرار۔ دیکھنے کو طیبہ کی بہار، دل ہے بے قرار آقا، دل ہے بے قرار۔ دیکھنے کو طیبہ کی بہار، دل ہے بے قرار آقا، دل ہے بے قرار۔ صبح طیبہ میں ہوئی بنتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست وہ ہے بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا گوشالہ نور کا، او مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا، درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات بلا تاخیر و تمہید میں اپنے عنوان پہ آتا ہوں۔ آج سے 1400 سال پہلے کا جائزہ لیا جائے، جس وقت میرے آقا اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔
اس وقت انسان کی کیا حیثیت تھی، اس کا وقار کس ماحول، کس اندھیری اور تاریکی میں گھرے ہوئے تھے۔ 1400 سال پہلے کا جائزہ لیا جائے تو اس وقت بھی دنیا میں انسانوں کی کمی نہیں تھی۔ دنیا کے گوشے گوشے میں ابن آدم پائے جا رہے تھے۔ کوئی بھی ایسا خطہ اور چپا نہیں تھا کہ جہاں پر یہ انسان آباد نہ ہو۔ یہ انسان اپنے معبود حقیقی کی عبادت کرنے کے بجائے جب سویرے سویرے اگتے ہوئے سورج کو دیکھتا، اس کی شعاؤں پر نظر ڈالتا تو اپنی پیشانی کو جھکا دیتا، پھر جب سورج ڈوب جاتا، رات کی تاریکی میں چاند کی چاندنی پھیلتی تو یہ انسان کہتا ہے چاند تو میرا معبود ہے۔ جب یہ سمندر کے کنارے سمندر کی لہروں کو دیکھتا تو کہتا تو میرا معبود ہے۔ جب یہ ہرے بھرے لہلہاتے پودوں کو دیکھتا تو کہتا تو میرا معبود ہے۔ جب یہ بڑے بڑے پہاڑوں کی ٹیلوں پر نظر ڈالتا تو کہتا تو میرا معبود ہے۔ جب یہ آگ کے شعلوں پر نگاہ ڈالتا تو کہتا تو میرا معبود ہے۔ غرض کے ہندوستان سے لے کر عربستان پر کفر و گمراہی کے بادل چھائے ہوئے تھے، بلکہ جس ملک میں ہم اور آپ آباد ہیں اس ہندوستان میں 32 کروڑ معبودان باطل کی پوجا ہو رہی تھی۔ کنکر پتھر مکھی مچھر پیڑ پودے ہوا فضا ان سب کو معاذ اللہ معبود مانا جا رہا تھا۔ یہ انسان ذہن و فکر اور اعتقاد کی بنیاد پر اس طرح سے گر چکا تھا۔ اس ہندوستان میں سگی بہنوں کے ساتھ شادیاں کی جا رہی تھی، بچیوں کا بھیٹ چڑھایا جا رہا تھا۔ اگر جوان لڑکی کا شوہر مر جاتا تو اس کو دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں تھی، اس کو اپنے شوہر کی چتا پر جل بھون کر کے یاسو بھسم ہو جانا تھا، یا اگر وہ زندہ رہنا چاہتی تو ایک مکان میں اس کو قید کر دیا جاتا تھا۔ ضروریات زندگی اس کے لیے وہی پیش کیے جاتے تھے۔ اگر زندہ نکلتی تو اس کے چہرے پر کالک پوت کر اس کو جانور پر بٹھا کر گھمایا جاتا تھا، اور یہ ذہن و فکر دینے کی کوشش کی جاتی تھی کہ یہ منحوس تھی، یہ رواج تھا ہندوستان کا۔ اور عربستان کا حال تو یہ تھا کہ وہاں بعض قبیلے میں بچیوں کے پیدائش کو بہت ہی منحوس سمجھا جاتا تھا۔ اگر بچی پیدا ہو جاتی تو باپ ماں کی گود سے بچی کو چھین لیتا، ایک میدان میں لے جا کر گڑھا کھودتا، بچی کو وہیں سلا دیتا، اپنے قدم کو اس کے گلے پر رکھ کر کے دباتا، بچی چیخ مارتی، اس کی زبان باہر آ جاتی، باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ملاتی، مگر باپ کی آنکھوں میں آنسو آنے کے بجائے ماتھے پر غصے سے پسینہ آ جاتا، اور ظالم باپ اپنے ظالم ہاتھوں سے بچی کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا۔ یہ ہمیں تاریخ بتا رہی تھی۔ انسان اس بھیانک ماحول میں مبتلا تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر کرم فرمایا اور اپنے آخری پیغمبر حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عرب دیش میں مکہ کی سرزمین پر مبعوث فرمایا۔ میرے سرکار جب مکہ کی سرزمین پر تشریف لائے، سویرے سویرے دوشنبہ کا دن تھا، نبی جب سویرے سویرے تشریف لائے تو عقل نے ایک سوال کیا کہ میرے سرکار دن کے مکمل اجالے میں کیوں نہیں آئے، یا رات کے مکمل اندھیرے میں کیوں نہیں آئے؟ تو عقل نے فوراً جواب دیا سنو، اگر سرکار دن کے مکمل اجالے میں تشریف لاتے تو رات چیلنج کر دیتی اے دن تیری کوئی حقیقت نہیں ہے، نبی آخر الزمان مجھ میں تشریف لائے ہیں، اور اگر میرے آقا رات کے مکمل اندھیرے میں تشریف لاتے تو دن چیلنج کر دیتا ہے رات تیری کوئی حقیقت نہیں ہے، نبی کونین مجھ میں تشریف لائے ہیں، میرے آقا ایسے وقت میں تشریف لا رہے ہیں کہ رات کا اندھیرا جاتے جاتے چہرے مصطفیٰ کی زیارت کر لے اور دن کا اجالا آتے آتے رخ مصطفیٰ کی زیارت کر لے۔ ایسے ماحول میں میرے سرکار مکہ کی سرزمین پر تشریف لائے، اور جب میرے سرکار مکہ کی سرزمین پر تشریف لائے تو مکہ کی گلیاں مہک رہی ہیں، مکہ کی ہوا فضا مہک رہی ہے، مکہ کے بڑے دیوار مہک رہے ہیں، مکہ کی وادیاں مہک رہی ہیں، مکہ کی پہاڑیاں مہک رہی ہیں، مکہ کی شاہراہیں مہک رہی ہیں، ہر طرف سے بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عاشق رسول نے اسی طرح اشارہ کیا کہ بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ، بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ، اور کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے تمہارے نبی کونین سویرے سویرے تشریف لائے ہیں کہ سرداران مکہ سو کر کے اٹھتے ہیں، حرم شریف کے سامنے آ کر اکٹھا ہوتے ہیں تو آپس میں بات چیت شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ میرا مکان
महक रहा है, कोई कह रहा है कि मेरे घर पर बुढ़ापा बिना दवा के अच्छा हो गया है, कोई कह रहा था कि मेरे जानवरों के फल खुश्क हो गए थे, दूध से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई कह रहा था कि मेरे बाग में बिन मौसम के फल लगे दिखाई दे रहे हैं। बड़े अच्छे अंदाज से कहा बेगल बलरामपुरी में कि आज ललन हाशिम के आए धरती भय जियारी, आज ललन हाशिम के आए धरती भय जियारी, और बिन मौसम के फल गई बगिया, फूलवन सज गई डारी, डोले खुलते गई मस्त पैरिया, चंद्रमा लूटा बेला, चंद्रमा लूटा बेला। अल्लाह अकबर। सरदार ने मक्का हरम शरीफ के सामने यही बातचीत कर रहे हैं, इतने में एक सरदार खाने काबा के अंदर से बाहर आया। उसने पूछा है सरदार ने मक्का ये इज्तिमा कैसा है, ये भीड़ भाड़ कैसी है? तो उन लोगों ने कहा क्या तुम्हें मालूम नहीं हो रहा है? आज देखो तो हर तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही है, हर तरफ देखो तो हर तरफ बाग हरियाली नजर आ रही है, पत्तों पर दरख्तों पर भी मौसम के फल लगे दिखाई दे रहे हैं। ये अंदाजा तुम्हें नहीं लग रहा है, ये इनकलाब तुम्हें महसूस नहीं हो रहा है? उसने कहा कि तुम लोगों ने तो यही देखा है, मैंने जो देखा अगर बताऊंगा तो ताज्जुब करोगे। सरदार ने मक्का ने पूछा कि तुमने क्या देखा है? उसने कहा कि अभी अभी मैंने खाने काबा का तवाफ किया, जब मैंने तवाफ मुकम्मल किया चलने का इरादा किया तो क्या देखता हूँ सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब अपनी गोद में एक बड़ा हसीन जमील बच्चा लेकर आ रहे हैं। वो इतना हसीन जमील बच्चा था, वो इतना खूबसूरत बच्चा था कि मेरा दावा है मक्का की सरजमीन पर किसी खानदान में किसी कबीले में इतना शान बच्चा पैदा नहीं हुआ। वो इतना खूबसूरत बच्चा था कि सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब उस बच्चे को लेकर जू काबा की तरफ बढ़ते रहे। मैं मुड़ कर पीछे देखता रहा, जब वो काबा के करीब पहुंचे हैं तो मेरी निगाह फैसला कर सकी कि अब्दुल मुत्तलिब काबा की तरफ बढ़े जा रहे हैं या काबा उनकी तरफ झुका चला आ रहा है। मेरी निगाहों ने देखा है कि मेहराबे काबा झुक गई है। जब सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब उस बच्चे को लेकर काबा के करीब पहुंचे हैं, मेरे इमाम ने इसी तरफ इशारा किया कि जिसके सजे देखो मेहराबे काबा झुकी, उन भाव की लताफत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। सरदार मक्का कहते हैं कि जरा हम भी तो देखें कि सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब की गोद में कितना हसीन और जमील बच्चा है। अब ये सारे सरदार खाने काबा के पास जा रहे हैं। मेरे नबी के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब मेरे आका को गोद में लिए हुए हैं। सरदार मक्का पहुंचे तो इन लोगों ने कहा ये सरदार कुरैश हमने सुना है कि आपके पास बड़ा हसीन और जमील बच्चा है, हम उसकी जियारत करना चाहते हैं। खुदा की कसम कुर्बान जाओ अपने नबी की अजमत पर, मुस्तफा नबी कौनैन की शान पर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जैसे ही चादर को हटाया सरदार मक्का की निगाह चेहरे पर पड़ी तो आला हजरत अजीमुल बरकत की ज़बान में वो इस तरह बोल पड़े, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और प्यारे हुस्न मुस्तफा की बात चल गई है तो पर बताता चलो। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं नबी कौनैन के चेहरे के बारे में कअन्ना शम्स तजरी फी वजहिही, ऐसा लगता था नबी के चेहरे को देखकर जैसे मुस्तफा के चेहरे में चांद तैर रहा हो। अल्लाह अकबर। आओ हजरत जिब्रील से पूछते हैं जिन्होंने सारे अव्वलीन और आखिरीन को देखा है, हजरत आदम को भी देखा है, हजरत नूह को भी देखा है, हजरत शीश को भी देखा है, हजरत यहया को भी देखा है, हजरत ज़करिया को भी देखा है, हजरत हूद को भी देखा है, हजरत सालेह को भी देखा है, हजरत लूत को भी देखा है, हजरत मूसा को भी देखा है, हजरत ईसा को भी देखा है, हजरत याकूब को भी देखा है, हजरत इब्राहिम को भी देखा है, हजरत इस्माइल को भी देखा है, हजरत यूसुफ को भी देखा है, जिन्होंने सारे अव्वलीन और आखिरीन को देखा है। आओ हजरत जिब्रील की बारगाह में हाजिरी दी जाए और अर्ज किया जाए ऐसे जिब्रील मलाइका आप बताएं कि आपने मेरे सरकार की तरह किसी को पाया कि नहीं? तो हजरत जिब्रील अपनी ज़बान में फरमाते हैं कल्लबतुल अर्द मशारिक़हा व मगारिबहा फलम अरा मिस्ल मुहम्मदिन, मैंने ये जमीन के चप्पे चप्पे को छान डाला है, खित्ते खित्ते को देख लिया है, लेकिन मोहम्मद की तरह किसी को नहीं पाया। अरे कुर्बान जाओ वाला हजरत अजीम और बरकत अली और बरकत रसूलुल्लाह अकबर उन्होंने इसी तरह इशारा किया
नारे रिसालत, मुफ्ती साहबान साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर। किस नबी की सीरत सुन रहे हैं आप? जरा उनसे भी नबी की सीरत पूछ लीजिए जो किताबों में लिख गए कि मेरे आका को दीवार के पीछे का इल्म है। मैं कहता हूं प्यारे, बरेलवियों के साथ बैठ, मिलादे मुस्तफा को शिर्क कहने वाले मिलाद में 5 मिनट बैठ। आएगा जब तू मिलाद में तो तेरे सीने में नबी का कीना होगा, पर जब मिलाद से जाएगा तो तेरे सीने में नबी का मदीना होगा। अशरफ अली थानवी से हजरत किसी ने पूछा कि नबी की शान में कुछ हदीस बयान कर दिया, तो उनका जो सबसे बड़ा मौलाना है वो कहता है शान बयान करने के लिए रिवायात का याद होना जरूरी है, और मुझको नबी की शान में एक भी हदीस याद नहीं है माज़अल्लाह। उनका जो सबसे बड़ा मौलाना है वो ये कहता है कि मुझे नबी की शान में एक भी हदीस नहीं याद है। मैं कहता हूँ प्यारे, तू हमारे बड़ों की बात बाद में करना, इस सरजमीन से, ढौराबारी की सरजमीन से 10 साल के बच्चे को उठा और इस बच्चे से पूछ तेरे नबी की शान क्या है। तो खुदा की कसम, ये मिलाद पढ़ने वाला 10 साल का बच्चा दोनों हाथों को फिजा में बुलंद करके कहेगा मेरे नबी की शान जानना चाहता है तो सुन, मेरे नबी की शान ये है कि सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। मिलाद पढ़ने वाले एक बच्चे को उठा, पूछ तेरे नबी की शान क्या है। ये बच्चा फिजा में, हवा में आवाज को बुलंद करके हाथों को लहरा कर कहेगा जमीनों समा तुम्हारे लिए, मकीनों मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, बहन में सभा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, जमीनों समा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, कलीमों ने की मसीहो सभी से कहीं ना पारी, ये बेखबरी कहां से कहां तुम्हारे लिए, सभा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले, रजा की जबान तुम्हारे। इस नबी की सीरत हम सुन रहे हैं, वो नबी जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर किस्म के तसर्रुफात और इख्तियारात अता कर दिए। एक ऐसी रिवायत बताओ, आओ हमारे सीने में जो नबी बसते हैं 12 से ज्यादा क्रास हो गया है, आप लोग समाप्त कर रहे हैं। हुजूर नबी कौनैन की बारगाह में ये गुनहगार दुआ करता है, मौला यहाँ जितने लोग हाजिर हैं हम में से किसी को उस वक्त तक मौत ना आए जब तक कि गुंबद खजरा की जियारत न हो। आओ अब अपने नबी की शान सुनो। मेरे आका की पैदाइश हुई, हजरत जिब्रील वो है जिन्होंने सारे नबी को देखा है और सबकी अजमत जानते हैं। हुजूर की पैदाइश हुई, उन्होंने मेरे सरकार को उठा लिया, एक तराजू लगवाया। अब ये जानना चाहते थे कि हुजूर नबी कौनैन जो महबूबे खुदा है इनकी अजमत क्या है। एक पल्ले में मेरे आका को रखा, दूसरे पल्ले में एक दूसरे इंसान को, फिर भी मेरे नबी का पल्ला भारी था। हजरत जिब्रील ने एक पल्ले में सरकार है, दूसरे पल्ले में 10 लोगों को रख दिया। किसका पल्ला भारी? फिर भी नबी का पल्ला भारी। हजरत जिब्रील ने फरिश्तों से कहा ऐसा है सैकड़ों लोगों को एक पल्ले में रख दो, और एक पल्ले में मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैकड़ों लोगों को रख दिया गया, फिर भी नबी का पल्ला भारी था। 1000 लोगों को रख दिया गया, नबी का पल्ला
بھاری ہے, करोड़ों लोगों को रख दिया गया, नबी का पल्ला भारी है. जिब्रील ने कहा ऐसा है जमीन भी रख दो इसी पल्ले में. एक पल्ले में जमीन भी रख दी गई है और दूसरे पल्ले में तन्हा मेरे आका है, फिर भी मेरे मुस्तफा का पल्ला भारी पड़ रहा है. हज़रत जिब्रील कहते हैं आसमान को रख दो, आसमान को भी रख दिया गया, फिर भी नबी का पल्ला भारी है. शजरो हजर रख दिए गए, नबी का पल्ला भारी है. बहरों पर रख दिए गए, नबी का पल्ला भारी है. नबातात व जमातात रख दिए गए, नबी का पल्ला भारी है. इंसानों हैवानात रख दिए गए, नबी का पल्ला भारी है. फरिश्ते और अंबिया रख दिए गए, फिर भी नबी का पल्ला भारी है. अर्शो कुर्सी को भी रख दिया गया, फिर भी नबी का पल्ला भारी. जिब्रील अमीन ने फरिश्तों से कहा अरे फरिश्तों ठहर जाओ, अरे खुदा की कसम अगर एक पल्ले में सारी कायनात रख दी जाए और दूसरे पल्ले में तन्हा मुस्तफा हो, फिर भी मुस्तफा का पल्ला सब पर भारी पड़ जाएगा. जिंदाबाद. सुमत भाई कहाँ है? अब मैं ज्यादा हो चुका है, उसके मद्देनजर रखते हुए अपने गुफ्तगू खत्म करता हूँ. शादी के मौके पे इस महफिल पाक का इनेकाद हुआ. आओ मैं बताऊं कि बच्ची की अजमत क्या है. वो बच्चियां जो सरकार की पैदाइश से पहले जिंदा दरगोर कर दी जाती थी. अरे हम लोग तैयार हैं हजरत, हम लोग तैयार हैं. 2 बजे तक बोलिए, ऐसी बात नहीं है. समाज फरमाए दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद मादिन वल करम. सरकार फरमाते हैं सितरम मिनन नार हिजाबम मिनन नार, कल मैदान महशर कायम होगा. गौर से समात फरमाएं बच्ची की अजमत क्या है मैं आपको बताता चलूं. अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा था या रसूल अल्लाह कल क़यामत का मैदान कायम होगा, हौलनाक मंजर होगा, लोग पसीने में शराबोर होंगे, या रसूल अल्लाह उनकी बख्शिश कौन कराएगा. मेरे आका फरमाते हैं जिसके पास बच्ची हो वो बच्ची क़यामत के दिन अपने माँ बाप की मग़फ़िरत कराएगी. फिर हजरत आयशा ने पूछा या रसूल अल्लाह अगर किसी के 2 बच्चियां हो तो मेरे आका फरमाते हैं वो 2 बच्चियां माँ बाप की मग़फ़िरत फरमाएंगी. फिर हजरत आयशा सिद्दीक़ा पूछते हैं आका ये बताएं अगर किसी के पास 3 बच्चियां हो, मेरे आका फरमाते हैं जिसको परवरदिगार आलम ने 3 बच्चियां दे दिया तो समझे कि खुदा उससे खुश है, राजी है. आप प्यारे मैं बताऊं बच्चियों की अजमत क्या है. कल क़यामत का मैदान कायम होगा, 2 जमातें लगेंगी, एक लाइन में जहन्नमी खड़े किए जाएंगे, दूसरी लाइन में जन्नती खड़े किए जाएंगे. जब जहन्नमी जन्नतियों के पास जन्नती जहन्नमियों के पास से गुजरने लगेगा तो जहन्नमी जन्नती का हाथ पकड़ लेगा, कहेगा ठहर जाओ मुझे पहचानते हो. वो कहेगा हाँ पहचानता हूँ. कहो क्या बात है. वो कहेगा मैं तेरा रिश्तेदार था, मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरा भाई हूँ, तू मेरी बहन थी, तू मेरी बेटी थी, आज तू जन्नती करार दे दी गई है और मैं अपने आमाल की बुनियाद पर अब जहन्नमी करार दे दिया गया हूँ. खुदा के कहरो गजब का सवाल मुझ पर हो गया है. तू जन्नत में जा रही है और मैं जहन्नम की तरफ जाने वाला हूँ. तू जन्नत में जा रही है, मैं तेरा हाथ पकड़ा हूँ, मेरे लिए रब की बारगाह में दुआ करो. खुदा की कसम वो जन्नती बंदी बच्ची ठहर जाएगी, रब की बारगाह में अर्ज करेगी ए मेरे मौला ये मेरा भाई है, ये मेरा बाप है, इसने दुनिया में मेरी परवरिश की थी, इसने दुनिया में मेरी जरूरतें पूरी की थी, ये मुझसे इसका बदला मांग रहा है. खुदा की कसम कुर्बान जाओ ये कौनैन पर मेरे आका फरमाते हैं रब तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा ऐ मेरी बंदी उसका भी हाथ पकड़ ले जन्नत में लेकर दाखिल हो जाए. देखिए बाप के कलेजे का टुकड़ा होती है बेटियां. हमने देखा है जब शादी होती है माँ भी रोती है, भाई भी रोता है. जो बचपन में खेलने कूदने के लिए एक दूसरे से लड़ाई कर लिया करते थे, लेकिन जब शादी की वक्त रुखसती होती है तो भाई भी रोता है. बाप छुपके से जाके रोता है, कहीं छुप करके रोता है, इसलिए कि सबसे बड़ा सहारा वही होता है. अगर बाप को रोते हुए सब देख लेंगे तो खुद को नहीं संभाल पाएंगे, इसलिए बाप छुप करके रोया करता है. प्यारे बेटी और बाप का रिश्ता अजीब होता है. बाप अगर बेटी को ज्यादा खुश देख ले तो भी रोने लगता है और बेटे को गमगीन देख ले तो भी रोने लगता है.
आओ एक वाकया बताता चलो। हजरत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, 6 बरस की उम्र शरीफ है, मदीना तैयब मक्का मुकर्रमा की गलियों से गुजर रही थी। सामने अबू जहल था। अबू जहल ने जब हजरत फातिमा को देखा है तो आका की शान में बुरा भला कहने लगा। जैसे ही हजरत फातिमा का गुजर हुआ तो आपने कहा तू झूठा है, मेरे बाप को अल्लाह ने मेरे बाप को सच्चा बनाकर भेजा है। इतना जब हजरत फातिमा ने कहा है तो सैयदा फातिमा के चेहरे पर अबू जहल ने एक तमाचा मार दिया। अल्लाह अकबर। वो फातिमा जो मेरे आका के कलेजे का टुकड़ा है, नबी कौनैन की जिंदगी है। अल्लाह अकबर। जब अबू जहल ने हजरत फातिमा के गाल पर रुखसार पर तमाचा मारा है, आप रोते हुए घर वापस आई हैं। जैसे दरवाजे पर दाखिल हुए मेरे मुस्तफा ने देखकर पूछा, बेटी फातिमा ये बताओ तुम रो क्यों रही हो? फातिमा मैंने देखा है तुम्हारी राह में कांटे डाले गए मगर तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आया। कई दिनों के फाके हुए मगर तेरी आंखों में आंसू नहीं आया। तुझे ताने दिए गए लेकिन तुझे आंसू नहीं आया। बेटी फातिमा बता तुझे किसने रुलाया है? हजरत फातिमा ने बताया कि मैं रास्ते से गुजर रही थी, अबू जहल आपको बुरा भला कह रहा था। मैंने कहा था कि अबू जहल तू झूठा है, अल्लाह ने मेरे बाप को सच्चा बनाकर भेजा है। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने जब ये देख सुना है और बेटी फातिमा की आंखों में आंसू देखा तो मेरे मुस्तफा ने बाहें फैला दी हैं। हजरत फातिमा 6 बरस की है, दौड़ती हुई जाती है, आका करीम के सीने से लग जाती है। मेरे मुस्तफा ने पेशानी का बोसा लिया। आज देखिए उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, इनसे पूछिए मेरे मुस्तफा ने 63 साल उम्र में कभी किसी के लिए बद्दुआ नहीं की। नबी के रास्ते में कांटे डाले गए मगर नबी ने बद्दुआ नहीं की। नबी को बुरा भला कहा गया, नबी ने बद्दुआ नहीं की। नबी के जिस्म पर बोझ डाली गई, नबी ने बद्दुआ नहीं की। नबी के रास्ते में गड्ढे खोदे गए मगर मेरे आका को कभी जलाल नहीं आया। आज जब लख्ते जिगर सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू आया है तो मेरे मुस्तफा को जलाल आया। नबी का तेवर बदला। मेरे आका ने रब की बारगाह में अर्ज किया, ए मेरे मौला फातिमा को खुश करने का इंतजाम कर दे। आका करीम फरमाते हैं फातिमा जा अबू सुफियान के पास चली जा, अबू सुफियान से कह देना कि मेरे बाप मोहम्मद अरबी ने मुझको भेजा है। उनका कहना है कि अबू सुफियान अबू जहल के पास जाकर इसलिए मैं मुझको जो मांगा है उसकी माफी भी मांगे और वो इस बात से अहद करे कि उसको गलती हुई। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदा फातिमा अबू सुफियान के पास पहुंचती है, अबू सुफियान को सारा मामला बता देती है। अबू सुफियान ने हजरत फातिमा के हाथ को पकड़ा है, हाथ पकड़कर अबू जहल के दरवाजे के पास लेकर गया है। जब अबू जहल के दरवाजे के पास लेकर गया, दरवाजा खटखटाया, अबू जहल बाहर आया। अबू सुफियान को देखकर हैरत में पड़ गया। अबू सुफियान ने हजरत फातिमा को गोद में ले लिया था। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा को गोद में लेकर अबू जहल से अबू सुफियान कहता है कि तूने इस बच्ची को मार दिया, तुझे तरस नहीं आया? हमें मालूम है कि जब दुश्मनी होती है तो हम बड़ों से बदला लिया करते हैं, हमारा इंतकाम बड़ों से हुआ करता है। हमारी दुश्मनी बच्चों से होती है। इस 6 साल की बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा था? इस चाँद जैसे रुखसार पर तूने तमाचा क्यों मार दिया? तुझे हया ना आई? तूने फातिमा को तमाचा मार दिया। अल्लाह अकबर। अबू जहल ने सर को झुका लिया है। अबू सुफियान हजरत फातिमा से कहता है बेटी फातिमा तुम अबू जहल को तमाचा मारो। अल्लाह अकबर। आओ बताओ खानदान मुस्तफा क्या है? सकीना कौन है? ज़ैनब कौन है? फातिमा कौन है? जब अबू सुफियान ने कहा था फातिमा तुम मारो अबू जहल को, तो सैयदा फातिमा ने कहा था अबू सुफियान तुम्हें हमें जाना नहीं, हमें माना नहीं, पहचाना नहीं, हम खानदान मुस्तफा वाले हैं, नहीं दिया करते, हम तो जुर्मों को माफ कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती शहबान साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रसूल अल्लाह। हाँ बोलिएगा हजरत। रहने दीजिए, रहने दीजिए। या रसूल अल्लाह क्या हुआ सुबह? बोले तो हो, बोले तो। अबू जहल को तमाचा मारने के लिए अबू सुफियान ने कहा बेटी फातिमा अबू जहल को तमाचा मारो। गौर से सुने, बात इंपॉर्टेंट बात चल रही है। मैं बताना चाहता हूँ कि बच्ची क्या होती है, बाप के कलेजे का टुकड़ा होती है। खुदा की कसम प्यारे, बेटे तो बाद में आते हैं, पहले बच्चियां आती हैं। बच्चियों को बाप से इतना लगाव होता है कि अगर बच्ची मायके हो, ससुराल हो और उसको पता चल जाए कि मेरे बाप की तबीयत खराब हो गई है तो वो बेचैन हो जाती है। वो चाहती है